آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علمی کلام کے اندر موضوع وہی ہے جو ہمارا چل رہا ہے، اور وہ ہے وسعت کائنات. ہم وسعت کائنات کیوں اپنے نظر میں لا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اصل میں وجود خداوند کی نشانیاں، اثبات اور دلائل معلوم کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو فینومینن، جو چیز آپ کی عقل کو حیران کر دے، انسان کی عقل کو حیران کر دے، تو ظاہر سا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس فینومینن کا موجد، اس منظر کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس چیز کو دیکھ کر انسان کی عقل عاجز آ جائے سمجھنے سے، ایکسپلین کرنے کی بات الگ ہے. ایکسپلین کر سکیں آپ یا نہ کر سکیں، توجیہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ بعد والی بات. آپ تو دیکھنے سے بھی عقل عاجز ہے. یہ کیسے؟ اتنی وسعت کہاں سے؟ یہ کیوں کر؟ آپ کو معلوم ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو تمام کائنات کے اوپر ہے. یہ ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی نے قبول کیا ہے. انسان کے مقابلے میں اور کوئی مخلوق کائنات میں نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ اپنا خالق، اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. تو اب جب اس کا خلیفہ بھی عقل سے عاجز آ جائے یہ سمجھنے سے کہ کتنی کائنات، کس وسعت کی کائنات، کیسے اور کیوں کر خلق ہوئی، تو اس کا مطلب ہے جو مادہ پرست ہے، جو نیچر ہے، وہ دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا کہ نہیں، انسان کو چھوڑ کے مادے نے یہ سب خلق کیا ہے. مادی قوانین نے یہ سب کچھ اپنا نظارہ دکھایا. ایسا کرنا، مادہ پرست کا ایسا کہنا، اسے جنون کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اسے جہالت کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. اسی نقطے کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کائنات کی وسعت کو اپنی نظر میں لا رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کا مشاہدہ کرتے کرتے ہماری اپنی عقل دنگ رہ جائے گی اور اللہ کا وجود، اس کی بالکل صریح عریان حقانیت ہمارے ذہنوں پر بیٹھ جائے، بلکہ اس کی داغ بیٹھ جائے. تو اس لیے ہم وسعت کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے کل تک جو پلانٹس ہیں، یعنی سیارے ہیں، 8 سیارے
सूरज के गिर्द जो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। आप आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। ये हम एक सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और सोलर सिस्टम एक बड़ी, बहुत बड़ी गैलेक्सी में मौजूद है। गैलेक्सी के एक बाजू में मौजूद है। गैलेक्सी में बाजू होते हैं, स्पाइरली होते हैं बाजू। आपने कुछ जानदार देखे होंगे, ख़ासकर समंदरी जानदार, जिनके बहुत सारे बाजू हैं, और वो बाजू निकाल कर अपने उन शिकार को पकड़ते हैं। तो उसी तरह जो गैलेक्सी होती है उसके बाजू की शक्ल में होते हैं, जो भी अजराम फल्की है बाजू की शक्ल में होते हैं, और क्लॉकवाइज शक्ल में होते हैं। जब गैलेक्सी पे आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसके एक बाजू के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम का सूरज है, और पता नहीं कितने और सारे सूरज हमारी गैलेक्सी में हैं। और ऐसी गैलेक्सीज़ तकरीबन कहते हैं 200 बिलियन के करीब हैं। कुछ कहते हैं नहीं 200 नहीं 2 बिलियन है, कुछ कहते हैं 3 ट्रिलियन है। तो बहरहाल ये जो तादाद है इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूरबीन से देखने वाली चीज़ है। एक ने देखी दूसरी ने नहीं देखी, एक ने देखी दूसरी ने नहीं देखी। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। अगर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होती तो एक ने नहीं देखा दूसरा देखता, 3 देखते एक ही नहीं देखता, एक का रद्द हो जाता। लेकिन इसमें भी दूरबीनों का इस्तेमाल होता है, और बहुत ही ताकतवर दूरबीनों का, और लिहाजा कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते। इसलिए इख्तिलाफ है कितने और क्या, गैलेक्सीज कितनी हैं, तारे कितने हैं। तारों के बारे में कहा जाता है 300 सेप्टिलियन तारे हैं, 300 सेप्टिलियन। आपको अंदाज़ा सेप्टिलियन क्या होता है? अच्छा, सेप्टिलियन होता है जिसमें 21 ज़ीरो हों एक के बाद। 21 ज़ीरो और 300 के 2 ज़ीरो कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? 21 और 2 कहाँ हैं आप? 23। आप बोल नहीं सकते। 23 ज़ीरो 3 के दाईं तरफ लगाइए, 3 के दाईं तरफ 3 लिखिए, और उसके बाद 23 ज़ीरोज़ लिखिए। एक अंदाज़ा है कि 300 सेप्टिलियन स्टार्स कायनात में मौजूद है। और कायनात में सिर्फ यही स्टार्स ही नहीं है, प्लैनेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, मेटेराइट्स भी हैं। इस तरह से बहुत सारे 7 किस्म के अजराम फलकी हैं, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सब वसत है। तो हम फिलहाल जा रहे हैं अपने सूरज से बाहर। कहाँ तक पहुँचे हम? जहाँ आखिरी प्लैनेट है, और आखिरी प्लैनेट के बाद खाली जगह है दायरे के अंदर, और इस खाली जगह के परे हमने प्लूटो का आकार लिखा, प्लूटो लिखा। प्लूटो का क्या डिस्टेंस है? 5.5 लाइट आवर्स, और उससे पहले क्या था? नेपच्यून 4.2 लाइट आवर्स, गोया 1.3 बीच में लाइट आवर्स का वक्फा है, लाइट आवर्स का खला है, जिसमें कोई सयारा मौजूद नहीं। और उसके बाद इससे बाहर फिर प्लूटो है, ठीक है कि नहीं। और प्लूटो को फल्कियात के माहिरीन न प्लैनेट में शुमार करते हैं और न स्टार्स में। आप समझ नहीं, क्योंकि ये ऐसी अजीब चीज़ है कि वो समझते नहीं इसको कहाँ रखें, और ये जसामत में बहुत बड़ा है। तो वो कहते हैं कि गोल होने की वजह से प्लैनेट में रखें, तो लेकिन प्लैनेट वाली खुसूसियत इसमें नहीं है। आप समझ नहीं करिए। स्टार्स में रखें तो सूरज ये स्टार की तरह अपनी रोशनी प्रोड्यूस नहीं करता। अब कहाँ रखें? उधर रखें या इधर? तो बीच में रखा है, ना उधर ना इधर, लेकिन एक खला के बाहर। प्लूटो के बाद और सयारे हैं, अपने अपने स्टार के सयारे, लेकिन उसके बाद हमें काम है सितारों के साथ, स्टार्स के साथ। पहला स्टार सूरज, और उसके
प्लैनेट्स, उसके बाद बाकी सितारे। फिर आपको पता चलेगा सोलर सिस्टम कहाँ तक फैला हुआ है, और ये मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का एक छोटा हिस्सा है। देखिए अगला 5.5 लाइट आवर्स के बाद वो जुरमुट जो बहुत मशहूर है, सेंटाउरी, जुरमुट सेंटाउरी वाला जुरमुट मैंने क्लस्टर ऑफ स्टार्स, और उन क्लस्टर ऑफ स्टार्स में 3 स्टार्स, 2 पास में, एक थोड़ा दूर मगर किस तरफ, हमारी तरफ, यानी हमारा नज़दीक वाला सितारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। इन प्रॉक्सिमा सेंटोरी वाले जो है कॉम्प्लेक्स, उसका नज़दीक वाला सितारा यही प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो आप लिखते जाएं प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, और ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी है 4.25 लाइट ईयर्स। ये कभी प्लूटो से भी नज़दीक आता है। प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो एक ही प्लेन में नहीं है, वो तिरछा है। कभी वो बहुत नज़दीक आता है, जुपिटर के करीब आ जाता है, कभी पीछे चला जाता है। प्लूटो एक जगह नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो इस तरह नहीं है, वो तिरछा इस तरह। बाकी ऑर्बिट सीधे हैं, एक ही लेवल पे फ्लैट, और ये वाला उल्टा है, और उल्टा होने की वजह से नीचे की तरफ जाता है, दूर जाता है, जब ऊपर की तरफ फिरता है तो नज़दीक आ जाता है। समझ गए? तो इसी वजह से प्रॉक्सिमा सेंटोरी लगता है इससे करीब है, कभी इससे करीब आता है। और इस प्रॉक्सिमा सेंटोरी को कभी कहते हैं रेड ड्वार्फ। ये ड्वार्फ जो हैं ये भी सितारों की एक किस्म है, इनमें भी थोड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है, इनको सितारों में रखें या नहीं रखें, सितारों से अलग करें, स्टार्स हैं या नहीं है, लेकिन अक्सरियत मुत्तफ़िक़ है कि ये स्टार है क्योंकि ये चमकता है, रेड ड्वार्फ। और अगला है 2, सेंटोरी अल्फा और सेंटोरी बीटा। 4.25 बिल्कुल 25 लाइट आवर्स, सॉरी लाइट आवर्स नहीं, लाइट ईयर्स। तो दूसरे जो है ए और बी, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा जो है वो इनसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन दोनों की एक ही जगह है, डिस्टेंस में एक ही, क्योंकि एक दूसरे के साथ जैसे जम है, एक दूसरे के साथ देखे जाते एक दूसरे के पास हैं, अलग अलग लेकिन एक दूसरे के पास होने की वजह से इनकी डिस्टेंस एक ही लिखी जाती है। सेंटाउरी ए या अल्फ़ा, ए भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, जो मर्जी, और सेंटाउरी बीटा, और दोनों की एक ही डिस्टेंस, और वो है 4.4 लाइट ईयर्स। ये वाला भी लाइट ईयर्स है। सेंटाउरी कहाँ आवर्स और कहाँ ईयर्स पर बात आ गई। आप बहुत मशहूर थे सितारा एक और, बर्नार्ड स्टार, बर्नार्ड स्टार। ये है 5.9 लाइट ईयर्स, बर्नार्ड स्टार। 5.9 ही लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जब आता है वो किया जाता है ऊपर की तरफ, फ्रैक्शन वो नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। 9 बनेगा, जो 9 है, 9 के बजाय 10 बनेगा, 10 का मतलब है 6 बन जाएगा। आप 6 भी लिख सकते हैं, 5 और खाली 9 भी लिख सकते हैं, 5 को छोड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। उसके बाद लोहमान, इसको ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं, ब्राउन ड्वार्फ।
ان کو ڈوارف کیوں کہتے ہیں؟ جہاں جہاں آپ یہ ڈوارف دیکھیں گے ان کو ڈوارف کیوں کہتے ہیں؟ ان کو ڈوارف اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں تبدیلی آ چکا ہے اور یہ چھوٹے بن چکے ہیں، اس لیے ڈوارف کہلاتے ہیں. تبدیلی آئی ہوتی ہے ان میں، ایسٹرونومیکل چینج آئی ہوتی ہے. براؤن ڈوارف 6.5 لائٹ ایئرس. لائٹ ایئرس یاد رکھیں، ایئر میں کتنی ڈسٹینس بن جاتی، اور ایسی 6.5 کہاں پہنچ گیا آپ کا دائرہ سولر سسٹم کا، اس کا خیال رکھیں. اس کے بعد ایک تارا، بڑا خوبصورت نام اس کا، کاش ہم سب کا بھی نام نہیں بلکہ خاصیت ہی یہ بن جائے، اور وہ ہے وائز اسٹار. یہ وائز کیسے ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وائز اس کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ ہے 7.2. آگے صرف لائٹ ایئرس ہے. اور اس کے بعد ایک نام جو کوئی پسند نہیں کرے گا تو لیکن مشہور ہے یہ، اور وہ ہے W سے ہی وولف. یہ بھیڑیا نہیں ہے، اس کا نام ہے وولف. اور اس کا دوسرا نام لیونس ہے. لیونس LEO لیونس، یہ ای ہے یا لیونس. 7.85 7.85. اس کے بعد لالانڈے. آپ کبھی ایک دوسرے کے نک نیمز ایسے نہیں رکھنے. لالانڈے، سیدھا بیٹھو، ادھر کیوں دیکھتے، سیدھا بیٹھو. لالانڈے 8.3 8 پر چلا گیا. 8.3 آگے سب LHS ہے. 8.3. اس کے بعد مشہور ستارہ سائریس. اور یہ سائریس کتنی دور ہے ہم سے؟ 8.65 لائٹ ایئرس. اور اس سائرس کے ساتھ لازمی رکھنا ہے اے بھی، سائریس اے، کہ کہیں ایک اور سائرس ہے لیکن یہ والا ہے جو کہ 8.65 کی دوری پر ہے. اور 8.65 کی دوری پر یہ مشہور بھی ہے. کیوں مشہور ہے؟ بہت اچھے. برائٹسٹ کیوں ہے؟ اچھا. نمبر 2. اور نمبر 3 اس کا رنگ کیا ہے؟ اس کا بلوش. بہت اچھے، ویری گڈ. کیا نام ہے؟ برہان. بہت اچھے. اس کے بعد ایک اور ستارہ، وہ بھی آپ کا پہچانا ہوا، اور وہ ہے کینس میجر. کینس میجر کتنی دور ہے جناب؟ یہی 8.65. جب یہ بھی اتنی دور ہے اور یہ بھی اتنی دور ہے، اب آپ سے ایک سوال، یہ بھی 8.65 پر، یہ بھی 8.6 پر، یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں؟ دوسرا پلین ہوگا اس کا، ہاں؟ گھومنے کا دوسرا پلین ہوگا اس کا، دوسرا پلین ہوگا. نہیں، میرا مطلب ہے ان کی ڈسٹنس سورج سے ایک ہی ہے. جب ایک ہی ہے تو ایک ہی جگہ ہونا چاہیے، یہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ گھومنے کا طریقہ الگ ہوگا. کس چیز کا طریقہ؟ لاسٹ والا ہے نا. ہاں، کیا طریقہ الگ ہوگا؟ گھومنے کا مطلب، شاباش بولے. گھومنے کا طریقہ مطلب گھومنا ہے، ارد گرد. وہ تو دونوں گھوم رہے ہیں نا، اور سب کی ڈائریکشن ایک ہوتی ہے. کلاک وائز سب ہوتے ہیں، اینٹی کلاک. ہاں، بہت اچھے. ایک سائڈ میں ہوگا، دوسرے سائڈ میں ہوگا، ڈسٹینس ایک ہی ہوگی. جب وہ ادھر آئے گا یہ والا ادھر پہنچا ہوگا. سیدھا سا سوال آپ جواب نہیں دے سکے. لگتا ہے کہ آپ ذہن
पूरे का पूरा यहाँ नहीं लगाते, कुछ और यादों में आपके होता है जिसकी वजह से आप सोचते नहीं। अच्छा, आप तो कैनस मेजर के बारे में कौन सी बात की वजह से आपको ये याद है? विकेट डॉग स्टार, हाँ, और कौन सी बात की वजह से? और ये सबसे बड़ा स्टार है। आज नहीं, तस्वुर किया जाता था ये सबसे बड़ा सितारा, इसकी जगह बाद में किसने ले ली? UI स्कूटी, हैं? UI स्कूटी, UI स्कूटी। और इसका नाम क्या है असली? डॉग स्टार। नहीं, नाम तो यही रहेगा, वो कॉमन लैंग्वेज में जो कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का नाम है वो यही है, लेकिन जिसमें जैसे उसमें UI है, इसमें भी उसी तरह पहले, हाँ हाँ, इसमें VY है और उसमें UI है। बहुत अच्छे बुरहान लगता है कुछ करेगा, आप पता नहीं क्या करेगा, वो खुदा ही जानता है। VY कैनस मेजर। तो ये अगर ये बड़ा सितारा है और सितारा ये भी है और ये भी है, तो ये चमकता है और ब्लूइश वाइट है, इसका रंग क्या है? इसका ये और ये छोटा है, ये वाला छोटा है, रेड सुपर जी, ये वाला छोटा नहीं है, रेड सुपर जी, हाँ, रेड सुपर जी। रेड सुपर जेन, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है इसके मुकाबले में, लेकिन इसका जैसा चमकता नहीं, यानी इसमें कंबस्शन जो है, कंबस्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से इसका रंग रेड है, इसका रंग ब्लूइश वाइट नहीं है, और इसका ब्लूइश वाइट है, और ब्लूइश वाइट से नीचे पहले वाइट होता है, उसके बाद होता है बाकी रंग, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं उधर, इसके बाद 8.06 के बाद लुई 10 LUYTEN, लुई 10 8.79, ये 65 और ये 79 लाइट ईयर्स, लुई 10। और उसके बाद हाँ, लुई 10 के बाद रॉस के बाद सैजिटेरी लिखा जाता है, SAGITARI, लुई रॉस सैजिटेरी 9.7। देखिए ये इससे तकरीबन 1 साल इससे दूर है, ये इससे भी दूर 1 साल, 1 साल की दूरी, बीच में कोई सितारा नहीं है, जो बीच में है वो काबिल तज़किरा नहीं है, बीच में भी स्टार्स हैं लेकिन वो छोटे छोटे, तो ये बड़े बड़े हैं, यानी तज़किरे के काबिल, नाम लेने के काबिल। ये रॉस सैजिटेरी और दूसरा खाली रॉस, और ये वाला रॉस जो है ये 10.3 कहाँ पहुँच गया मसला। और ये वाला रॉस जो है ये 154 लिखा जाता है, और ये वाला जो है 248, नंबर अलग अलग है, 248। फिर एपिलसन APILSON, एपिलसन जो है ये है 10.4। उसके बाद ला खेले फ्रेंच नेम है, CAILLE, ला खेले 10.7। उसके बाद एक और रॉस है 128, एक और रॉस, और इसका नंबर है 128, ये उससे भी दूर है, और इसका दूसरा आम नाम है वर्जिनिस, दोशीज़ा वर्जिनिस। इसको कौस भी कहा जाता है अरबी ज़बान में, कौस वर्जिनिस, नहीं कौस नहीं ना, नाम कुछ और है। वो है 11.00
0.00 یہ سب لائٹ ایئرس ہے. اس کے بعد ایکویری ACQUARII اور یہ ہے 11.1 لائٹ ایئرس. اس کے بعد دو ستارے ہیں سب پاس پاس میں A اینڈ B سگنی CYGNI سگنی AB اور BB سینٹوری کی طرح پاس پاس میں ایک ہی ڈسٹنس 11.4 لائٹ ایئرس. آپ کہاں پہنچے 11.4 پر؟ جیسے وہاں دو ستارے ایک ہی ڈسٹنس پر تھے یہاں ایک تیسرا ستارہ اسی ڈسٹنس پر پروسیون یہاں میں لکھتا ہوں جگہ نہیں ہے پروسیون اور یہ بھی یہی ڈسٹنس 11.4. اس کے بعد ایک ایسا ستارہ ہے جس کا نام آپ رکھنا چاہتے اپنا اور اس لیے میں اسے آج بتاؤں گا نہیں اور وہ ہے گرومز برج. گروم آپ کو نہیں نا پتا برائڈ اور گرومز برج اس کا ذکر کریں گے کل کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. تو لیکن آپ کے لیے ایک ہوم ٹاسک اور وہ ہوم ٹاسک یہ ہے یہ سگنی یا پروسیون یہ کتنے کلومیٹرز دور ہے اس کو آپ تبدیل کریں گے لائٹ ایئرز میں سے کلومیٹرز میں اور مجھے بتائیں گے کتنا ہوگا. پھر بتائیں گے آپ اس میں کتنے ڈیجٹس ہیں کتنے اعداد ہیں اس میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک لیکن ایک دوسرے کو دکھانا نہیں خود کرنا دوسرے کو دکھانا نہیں. آپ کریں گے اس کو نہیں دکھائیں گے آپ کریں گے اس کو نہیں دکھائیں گے. ہاں کیا یم چھنا لائٹ ایئرس دور یہ کوتاہ سا دور چھ ییتیاہ لائٹ ایئرس تۄہہِ چھُ وَنُن یم کۭتیاہ کلومیٹر چھِ بنان. آپ سمجھے اس کا فارمولا آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے ایک لائٹ آور کتنا ہوتا ہے ایک لائٹ منٹ کتنا ہوتا ہے ایک لائٹ سیکنڈ کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. یہی ہوتا ہے نہ آنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.